Hello everyone. Today's video agenda is discussing and experiencing what I experienced about the movie named Project Hail Mary, and it's basically a new science fiction movie which has recently came out. Features Ryan Gosling, and the movie was just this. अब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा उस मूवी को मैं बताना चाहता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल क्या लेना आई गेस द मूवी का जो movie is basically not something like extraordinary, right? It's not something like uh, very interstellar stuff. Like it just changes the full perspective of how you see the universe itself. But it's a straightforward movie. Um, a lot of science, yes, uh, but also simple things like emotional connectivity, um, humor, a lot of humor, and you know the connection towards the each other as a human being, something which dwells on the social aspect of the society. And uh, if we just further talk about the movie, there are basically two scenes which two scenarios, or what should I say, that basically it is in two parts. One is the part where basically Ryan Gosling acting as Grace, uh, the part where he is not in the universe, and he's just knowing about the stuff, knowing about the Project Hail Mary, and researching about the uh, organism, or should I cells called astrophage, which also serve as a fuel. Um, so that part is something else, and there's the second part which is in the universe. So basically these parts overlap each other in the movie, and you consequently see these parts like first part, if you it would be like showing universe for 5 minutes, then the other 5 minutes would be about its before the universe, or basically before venturing into the space. अब मेरी बात करते हैं. सो जब मैंने मूवी देखी तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल माई एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट ऑफ ऑल थिएटर में, लाइक इट वाज प्रीटी न्यू टू मी, बिकॉज मैं कभी ऐसे प्राइवेट थिएटर में नहीं गया था. बट द थिएटर वाज वेरी गुड. इट वाज एक्चुअली बंसल प्लाजा, एंड नया नया था. One thing which I really want to complain about is the prices. They are so high, like so high. But I will also say that the food was very good too. The snacks were too good, but the price was much more. At least like I would suggest keep Cinepolis should act on it, and like probably keep some snacks at least under the ticket price, which is around 300ish. Yeah, that's one complaint. But let's coming back to the big topic. मैंने एक्सपीरियंस की मूवी बहुत अच्छा देख, मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन पहला तो मेरा कॉन्सेप्ट था कि जो जो इन्वायरमेंट दिखा गया, जो मैकेनिकल इन्वायरमेंट था शिप के अंदर, वो बहुत ज़्यादा mesmerizing था मेरे लिए, बिकॉज दैट्स हाउ आई अज्यूम, और मैं चाहता हूँ कि भाई हम लोग कि एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम स्पेस में जाके वेंचर करें. एंड बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज में दिखाई गई, इट वॉज जस्ट वेरी फैसिनेटिंग टू मी. खासकर वो इंजन्स जैसे थे जो ऐसे फ्लैप्स टाइप के थे, इट वॉज वेरी गुड. इवन आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट इट, सो आई विल हैव टू रिसर्च अबाउट इट. ऑफ कोर्स द बुक राइटर जिससे ये मूवी इंस्पायर हुई है, बनी है, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा होगा ऑफ कोर्स. एंड द बेस्ट पार्ट वाज रॉकी इटसेल्फ. और एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मुझे वो ऑर्गेनिज्म देख के बहुत अच्छा लगा. एंड बिकॉज इसलिए क्योंकि आप ऐसी लाइफ देख रहे हो जो कि मतलब बाहर की है. इट्स नॉट समथिंग विच हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अर्थ. इट हैज़ ऑरिजिनेटेड इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट. एंड अगर इफ़ यू रिसर्च अबाउट द मूवी इटसेल्फ,
इट डज शो कि जो उनका एडियन सिस्टम है, तो एडियन प्लानट और वट एवर इट इज़, एडियन 40 आई गेस. सो इट इज़ बेसिकली लोकेटेड very near their own star, and it's comparable to our Mercury, but Mercury is still, you know, a little farther away. And it is the ADN 40 is 2 times the size of Earth, and of course mass is going to be very heavy, and also because due to like good amount of mass and a dense atmosphere, the pressure level is also very high, of course, and that, you know, that leads us to actually know, and you know, therefore should say that that's how Rocky is, why he's a rock. अब जो मुझे लगा कि लाइक रॉकी एंड जो इंसान के बीच में जो कनेक्शन था, इट वाज द ऑफ कोर्स द ग्रेस, जो उनके बीच में जो कनेक्शन था वो बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड इवन द कम्युनिकेशन बिटवीन देम, हाउ दे, यू नो, वर्क टुगेदर टू सेव देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स, it was very fascinating. The humor was really very good. Humor was very, of course, very good. And what other things which I found fascinating was the spaceship of Rocky, which was very very good. And you know, जब आप देखते हो कुछ सीन्स उसमें जहाँ पे आपको पता चलता है कि यार ये मुझे मतलब उसमें कैमरा टाइप का सिस्टम है कि मतलब वो ऐसे धर धर घूमता रहता है, एंड जस्ट यू नो लोकेट करता है क्या है वो चीज़, दूसरी चीज़ क्या आ रही है स्पेस में, है ना, ऑब्जर्विंग थिंग. एंड एक था रेडार टाइप का, तो यू जस्ट यू नो पता चल जाता है उससे कुछ चीज़ें. तो इट वॉज गुड. द होल टेक ऑफ हिज स्पेसशिप वॉज वेरी वेरी गुड. एंड जो भी चीज़ें उसमें दिखाई गई अबाउट देयर रॉकीज एंड हिज कम्युनिटीज़ थिंक वे वेरी गुड. एक और चीज़ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी इस मूवी में, वो था एक पॉइंट, लाइक इट वाज अ सीन बेसिकली इन विच वो यूनिवर्स को एक अलग वेवलेंथ में देख रहा होता है, एक अलग उसमें आई वुड से लाइक, देखो एक तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग जिस जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं हमें अपने नज़रिए से देखते हैं, बट देन देयर इज़ दिस थिंग कि जब आप कुछ और यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपने लेंस यूज़ किया किसी टाइप का लेंस, अगर आप ब्लू लेंस यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा अलग कलर दिखेगा. अगर आप पावर वाला लेंस को यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा पावर, जिस पावर के हिसाब से डायरेक्ट के हिसाब से आपको दिखेगा, दूर का दूर, पास का जैसा आपको देखना होगा. फॉर एग्जाम्पल जिस दूर का आपको पास देखना है, पास का या फिर दूर देखना है. और एक रहता है जो कलर वाला कि मतलब आपका कलर परसेप्शन कर देता है 3D ग्लासेस आ दिया. बट दैट सीन दैट वाज टोटली न्यू, बिकॉज उसने जब वो एक्टिवेट किया उस चीज़ को, लाइक वॉट एवर इट वॉज, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क रियली, बट दैट वॉज मेस्मराइजिंग, वेरी वंडरफुल, गॉर्जियस सीन, एंड आई वुड रिमेंबर इट फॉर माई होल लाइफ. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. लाइक जब वो ऐसे जाता है, लाइक एंड जो देखता हुआ एस्ट्रोफेजेस को, एंड लाइक लाल लाल रहता है उसमें प्रोबेबली, और इट वॉज गुड. ठीक है. बाकी आई लाइक अबाउट द सीन्स ऑफ शोइंग द प्लैनेट्स, एंड आई थिंक जो ये साइंस फिक्शन वाला आइडिया है ना इन मूवी वर्स, आई वुड से लाइक ज़्यादा डायरेक्टर्स को इस पर डवेल करना चाहिए. आई डू अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट जब भी ऐसा कोई डायरेक्टर अच्छी मूवी बनाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक द फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज दिस मूवी एड एस्ट्रा. सो बेसिकली एड एस्ट्रा आई फील कि मतलब वो भी अच्छी मूवी थी. इट वॉज गुड इनफ मूवी, बट इट डिड फेल्ट लाइक कि वो थोड़ा सा यू नो एक इंटरस्टेलर को थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करिए, बट एट अ वेरी लोकल लेवल, एंड इट वॉज फास्ट पेस्ड, नो स्टोरी बिल्डिंग एंड ऑल दैट. हो सकता है कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो, एंड बट यू नो देयर इज दिस थिंग कि जब आप ज़्यादा बेटर चीज़ें देखते हो तो आपको थोड़ी बेटर चीज़ें थोड़ी ख़राब लगने लगती है. सो आई एम नॉट बिलीविंग दैट, बट आई थिंक कि अगर इफ़ अ डायरेक्टर इज़ केपेबल इनफ और डज थिंक कि
कि he or she can try to make a very good science fiction movie or space related movie, there is a large base of audience which is ready to watch it and pay for it. एंड बिकॉज ऑल्सो कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी पिक्चर में देखने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता, तो ऑफकोर्स जो मूवी थिएटर्स होंगे अब फुल ही रहेंगे एंड इट्स गुड. सो वो तो था मेरा पर्सनल आइडिया. अब देखो, अब मूवी के सेकेंड पार्ट में चलते हैं हम, मतलब सेकेंड हाफ में ऑफकोर्स. एंड सेकेंड हाफ में क्या चला, बहुत सारी चीज़ें जो कि मिस हो गई, बट आई जस्ट there are so many things which you can talk about that film, but we only have limited time. There were scenes जहाँ पे उनका एयरक्राफ्ट लाइक ऐसे, नॉट एयरक्राफ्ट बट स्पेस क्राफ्ट ऐसे जा रहा होता है, लाइक दिस प्लान के एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं एंड दे हैव टू जस्ट सैम्पल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं ऑर्गेनिज्म के, अमीबा टाइप ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो कि बेसिकली एस्ट्रोफेज को खा रहा होता है. दैट शोज़ कि मतलब जो उनका स्टार, मतलब जो प्लानट का स्टार था वो बेसिकली मर क्यों नहीं रहा था, बिकॉज एस्ट्रोफेज वॉज बेसिकली कंज्यूमिंग एवरी अदर स्टार इन द यूनिवर्स अराउंड, इन द लोकल यूनिवर्स अराउंड अस, लोकल स्टार फॉर्मेशंस. एंड वही उसको जानने के लिए उसी को उसकी स्पेसशिप को भेजा था. इट वॉज जस्ट, वो जो सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब देयर आर पॉइंट्स जहाँ पे आपको लगता था कि भाई अब ये मरने वाला है एंड लाइक ही इज़ डेड or either is dead, right? But somehow they survived. Even मैं एक दोस्त के साथ गया था and he was just saying कि भाई तुझे पता है अब इसके बाद क्या होने वाला है. I just stopped him at once and said कि भाई देखने थे, because the scenes were just something like you experience. You don't say something about them, you just experience, because experiencing it makes you feel like it's something like you feel the moment, you feel good. It was like that, and it's something like Interstellar का ब्लैक होल देखना, that's just उसको ब्रेंड होने में बहुत टाइम लगा था. सो इट जस्ट शोज़ कि भाई अगर आपने एफर्ट्स पुट किए हैं, दिखता है, वो दिखता है, डेफिनेटली दिखता है. एंड मेरे लिए थोड़ा सा एम्पैथेटिकल पार्ट जो था वो था ऑफकोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम, बिकॉज ये इसलिए भी क्योंकि जब आप देखो, आप थोड़ा पर्सनली अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ एंड विद ऑफ कोर्स अदर पीपल, सारे पीपल भी कनेक्ट करेंगे, बिकॉज जब व्हेन यू लूज अ पर्सन इट फील्स वेरी डिफरेंट, लाइक आफ्टर यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद अ पर्टिकुलर पर्सन एंड देन व्हेन यू लीव देम इट फील्स just, how do I explain this, it just does not feel good enough. Good enough, or should I say the negative of that, or should I say the opposite of it? Very bad, very depressing. And you ask yourself constantly what went wrong, and what could have been done to fix that and this, and just constantly remembering that person. That's something which happened between them. And आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आप सोचो, दोनों ही, मतलब देखो, अगर आप ग्रेस की बात करो तो ग्रेस भाई किसी को, मतलब एक तो उसे जाना नहीं था पहली बार, और जब वो गया भी तो उसके दोनों जो को पायलट्स थे और उसके जो कॉमरेड्स थे उनकी डेथ हो गई. ही वॉज अलोन. ऑन द अदर हैंड रॉकी के जो बाकी थे, एंड आई जस्ट रिमेंबर दोस थिंग कि मतलब रॉकी, देयर वाज दिस सीन कि लाइक रॉकी इज made die, Rocky is made die, Rocky not saved them, Rocky saved Grace, and that was, it was emotional. So after, like, when they met each other, they were of course, because they were alien to each other, and थोड़ा सा तो कंफ्यूज रहेंगे, मतलब कौन है भाई कि मतलब ये हमला तो नहीं करेगा, बट देखो ना, लाइक दे मैनेज टू कॉपरेट. आप सोचो, लाइक एलियन स्पीशीज से आप कॉपरेट कर रहे हो. थोड़ा सा ये नाम एक क्वेश्चन भी है मेरे अंदर, थोड़ा सा गुजबम्स से आता है कि भाई व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द ह्यूमन, बिकॉज फंडामेंटली माँ अपने बच्चे की केयर करती है, पिता अपने परिवार की केयर करता है, एवरीवन इज केयरिंग फॉर ईच अदर.
of course there are times when one has to do something to get the gather resources. There is something called, to get more things, or basically not being satisfied, and उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं. But the fundamental level is we show love towards each other, we show care towards each other. So that's something which I really felt about the movie. And मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि like just see the movie, don't think about it, don't even watch the trailer, because if you want, just go for the movie. It's fantastic, and it would be better if you watch it in a big theater, IMAX probably, if it is possible, because in my city there is no IMAX, so I just watched it on Cinepolis, but it was still good. I think ऐसी movies और बननी चाहिए. I do want to see the part 2 made for this movie, but the thing is that a good movie, a good science fiction like Interstellar is the one which has open ends, where you can think more. It gives you a world. It gives you a sandbox something. Like, you have this particular thing, you have 3-4 boxes. Now it depends on you what you want to make out of it. And that's how this movie is. One problem which I saw, I have a problem with, absolutely personal problem, that how the spaceship looked, for the Grace's spaceship looked. It was almost like a Kerbal Space Program, kind of made by a 12 or 13-year-old. It was not very, aesthetically good looking, as was of the Rockies. So yeah, just give me a second. Okay, so as a whole it was a pretty good movie, and ऐसे मैं और मूवीज़ देखना चाहूँगा. Part 2 of course open ended, because open ended होनी चाहिए उसमें, तो Part 2 I personally wanted, but अगर मिलता भी है तो मिलना चाहिए, बट नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, मतलब ओपन एंडेड ही ठीक है, थोड़ा सेटिस्फाइड रहना चाहिए कुछ चीज़ों के साथ. बट ऐसी मूवीज़ मैं और देखना चाहूँगा प्रोबेबली. लाइक देयर आर 3-4 मूवीज़ विच आई लाइक, मैं बोल सकता हूँ दैट आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. द फर्स्ट वॉज इंटरस्टेलर, मार्शियन, द मार्शियन, ग्रेविटी, एंड दिस वन ऑफ कोर्स. मे बी और भी होंगी मूवीज़, बट आई मीन नॉट रूमर. एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, द मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट. बट मैंने ये नोटिस किया कि मैट्रिक्स में जब मूवीज़ मतलब आगे बढ़, जो अलग उसके पार्ट्स हैं, दे नॉट ड्वेल ऑन मच ऑफ द साइंस थिंग्स, मच ऑन द एक्शन सीक्वेंसेस, ऑन द स्टोरी टेलिंग. तो ये मुझे लगता है कि भाई साइंस फिक्शन मूवीज़ में ना एक होना चाहिए कि भाई आपकी स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ मूवीज़ होती है जहाँ पे स्टोरी होती है, स्टोरी के अराउंड आपने यूनिवर्स लिया, ठीक है. सम थिंग्स आर लाइक, आपने अगर स्टोरी ली है तो आपको पूरी तरीके से उसको आप एक जिस सेट में, ये जिस साइंस पॉइंट पे या फिर जिस साइंस कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस करना चाहते हैं, उसको आप उसके अराउंड रैप है, स्टोरी के अराउंड रैप करें, इन अ सेंस कि वो इंटरवाइंड हो जाए ना, यू डोंट इवन नो. बट कभी कभी क्या होता है कि भाई वो इंटरवाइंड नहीं करती, तो इट जस्ट फील्स वेरी सेपरेट. अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो इट लुक्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग. बाकी एब्सोल्युटली वॉच इट, एंड दैट वुड बी इट फ्रॉम माई साइड. आई अपोलोजाइज इफ यू felt any inconvenience with me, because of course this channel has just started, and there are some things which I'm absolutely going to do wrong, and I want suggestions on which I can improve. And yes,